السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور بلی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، ہم لوگوں نے مغرب کی نماز سے پہلے القواعد الاربع نامی رسالے کی ابتدائی باتیں جو مقدمے سے تعلق رکھتی ہیں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب باقاعدہ وہ جو 4 قواعد ہیں اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی۔ مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی تاکہ ہم یہ 4 قاعدے اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس طرح سمجھ لیں کہ آپ انگلیوں پر گن سکیں اور ذہنوں میں، اپنے دلوں میں اپنے اچھی طرح سے اسے ازبر کریں، بٹھائیں، اور اپنے ارد گرد اپنی ذات، اپنے گھر بار، اپنے متعلقین افراد اور ایسے ہی اعزاء اقارب، اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنے کاروبار کے سرکل میں، جاب کے سرکل میں، جہاں بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، ہم ان 4 قواعد کو ذہن میں رکھیں اور اپنے بھائیوں تک ایک پیغام پہنچائیں۔ کوئی بھی ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیز جو ہے وہ شریعت کے ان 4 قواعد کے خلاف ہے، جس میں توحید کی معرفت ہوتی ہے، شرک کی معرفت ہوتی ہے، اور اس میں خلل پایا جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کو خالص کرنے میں اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مدد ملے گی۔ ہمارے سامنے جو پہلا قاعدہ ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی تھی، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی ہے نا، اور ساری جنگ تبوک تک، آخری جنگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوئی، یہ جو جنگیں لڑی گئیں جن سے اللہ کے نبی نے لڑائی لڑی، جہاد کیا، غزوہ کیا، ان تمام لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ یہ سب کے سب اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ آپ سوچیں، ایک طرف کیا ہے، کفار سے لڑائی لڑی۔ کس سے لڑائی لڑی اللہ کے نبی نے؟ کفار سے، اور کفار رب مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، خالق مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، بارش برسانے والا، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا، صحت دینے والا، بیماری دینے والا، موت زندگی دینے والا، یہ سب مانتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام کاموں کو کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کو مسلمان نہیں گنا، مسلمان نہیں سمجھا، ان کو کافر سمجھا، اور کافر سمجھنے کی وجہ سے ان سے جنگ لڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ پہلا قاعدہ جاننا ہے، کیا کہ صرف اور صرف ربوبیت کا اقرار کرنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو رب ماننے سے، خالق، مالک، مدبر، روزی دینے والا، موت زندگی دینے والا، یہ ماننے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا عبادت کا حقدار نہ مانے اور تنہا اس کی عبادت بندگی نہ کرے۔ اللہ کو رب ماننے میں کسی کو شریک اور ساجیدار نہ بنائے، ایسے ہی تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کا حقدار سمجھے، عبادت کا مستحق سمجھے، اسی کو معبود برحق سمجھے، اور صرف اسی کی عبادت کرے، کسی کو اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی اللہ کی عبادت پہ بندگی میں ایک ذرہ بھی شریک اور ساجیدار نہ سمجھے۔ تو پہلا قاعدہ کیا معلوم پڑا؟ کہ ربوبیت کے اقرار سے مسلمان نہیں ہوگا آدمی، رب ماننے سے مسلمان نہیں ہوگا، رب ماننے سے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ان کفار سے جنگ لڑی جو رب مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت اور بندگی نہیں کرتے تھے۔ یہ سرسری طور پر قاعدے کا بالکل خلاصہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں آپ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے مصنف نے دلیل پیش کی ہے، قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ یونس کی آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے یہ، اللہ فرماتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی
वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। ये देखिए एकदम साफ है आयत करीमा। अगर आप कहिए, अल्लाह फरमाता है अपने नबी से आप कहिए, यानी पूछिए, आप कहिए यानी मुशरिकीन मक्का से, कुफ़ार से आप पूछिए, मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समा, आसमान से तुम्हें रोजी कौन देता है, वल अर्ज़, और जमीन से, आसमान से जमीन से तुम्हें रोजी कौन देता है, कौन है जो तुम्हारे कानों का मालिक है और तुम्हारी निगाहों का मालिक है, यानी कान तुम्हें किसने दिया है और देखने के लिए आंखें तुम्हें किसने दी हैं, और कौन है जो जिंदा को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और कौन है जो मामलात की तदबीर करता है, दुनिया का निजाम चलाता है, कौन है जो तदबीर करता है जमीन व आसमान में। फसयक़ूलून अल्लाह, तो आपके सवाल के जवाब में ये मुशरिकीन क्या कहेंगे, अल्लाह। क्या जवाब देंगे, अल्लाह है सबका जवाब। तुम्हें जमीन में आसमान रोजी कौन देता है, अल्लाह। कानों का निगाहों का मालिक कौन है, अल्लाह। जिंदे से मुर्दा को, मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है, अल्लाह। वमन युदब्बिरुल अम्र, और मामलात की तदबीर कौन करता है, निजाम सिस्टम कौन चलाता है, सबके जवाब में वो क्या कहेंगे, अल्लाह। यानी मानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ही ये सारे काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फिर आप उनसे कहिए, फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगती, डरते नहीं हो, डरते नहीं हो। जब सब अल्लाह करता है तो तुम इबादत लात मनात की क्यों करते हो। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, सब कुछ अल्लाह अता कर रहा है, जमीन आसमान में तुम्हारे कान, तुम्हारी सलाहियत, तुम्हारी जिस्म जान में जो कुछ भी है सबका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, तो तुम क्यों नहीं डरते। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के बजाय तुम लात मनात उज़्ज़ा हुबल के सामने सर क्यों झुकाते हो, अल्लाह के सिवा के लिए इबादत क्यों अंजाम देते हो। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाई है। एकदम साफ है कि ये सब के सब मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का अल्लाह को रब मानते थे, रुबूबियत का अकीदा रखते थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहलवाया, पूछवाया। अल्लाह ने फरमाया कि इनके आपके सवाल के जवाब में यही कहेंगे कि सब अल्लाह तबारक व तआला ही करता है। तो अब आप ये कहिए कि जब रब अल्लाह तबारक व तआला को तुम मानते हो तो तुम इबादत अल्लाह ताला की खालिस क्यों नहीं करते। सर झुकाने के लिए लात के सामने क्यों जाते हो, अपने माबूद मुनमनात के सामने क्यों जाते हो, उज़्ज़ा के सामने क्यों जाते हो, हुबल के सामने क्यों जाते हो। जब सब अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है तो मानते हो तो तुम उसी की इबादत और बंदगी भी करो। ये देखिए पहली आयत करीमा। उसके बाद इस आयत करीमा को अगर आप सरसरी तौर पर समझें, इख्तिसार के साथ ही बात करेंगे, इसमें लंबी बात नहीं करना है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बहुत ज्यादा वाज़ेह। थोड़ी सी वजाहत ये करना है आपके सामने कि आज के दौर में ये मसला मौजूद है, हमारे दरमियान भी ये मसला मौजूद है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह एक है, अल्लाह एक है ये कहते हैं वो, और अल्लाह एक है कहने का माना क्या समझते हैं। हमने कब कहा कि जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह के सिवा कोई है, हमने कब कहा कि आसमान को अल्लाह के सिवा किसी और ने पैदा किया है, हम कहाँ कहते हैं अल्लाह ही ने, हम अल्लाह ताला ही पैदा करता है, हम कहाँ कहते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई पैदा करता है, हम कहाँ कहते हैं कि जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है। कब हमने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई देता है, हम मानते हैं। लेकिन यही बात मानने वाले सर झुकाने के लिए कहाँ जाते हैं, रुकू अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा के लिए भी करते हैं कि नहीं करते। देवी देवताओं की तरह नहीं, बल्कि देवी देवताओं का मामला तो अलग है, वो कुफ्फार मुशरिकीन हैं जो कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, उनकी बात हो रही जो इस्लाम के नाम लेवा हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जबान से इकरार करते हैं। अभी फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं, वो भी अल्लाह के औलिया के सामने, अल्लाह के नबियों के सामने, रसूलों के सामने जाते हैं, बाकायदा सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, कब्रों का तवाफ करते हैं, उनके सामने हाथ उठा करके उनसे मांगते हैं, उनसे अपने मुरादों का सवाल करते हैं, उनके सामने गिरिया करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और अपनी बिगड़ी बनाने के लिए उनके सामने अपनी बंदगी, अपनी गुलामी, अपनी मुहताजगी का इजहार करते हैं। आप ही मददगार, आप ही सनद, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, आपके सिवा हमारे लिए कौन है, इस तरह का इजहार करते हैं। तो ये बताइए कि अगर इसी तरह का अकीदा अगर आज कलमा पढ़ने वाले रखें
कि माने कि अल्लाह खालिक मालिक मुदब्बिर है, लेकिन सजदा कब्रों पर भी करें, रुकू कब्र वाले का भी करें, हाथ उठा करके दुआ कब्र वाले से भी करें। तो ये बताइए कि फिर क्या ये ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ रब मानने वाला अकीदा क्या इंसान को दायरे इस्लाम में बाकी रखेगा? दायरे इस्लाम में कैसे रहेगा आदमी? तो ये कायदा याद रखना कि सिर्फ रब मानने से कोई मुसलमान नहीं होता। इस्लाम के लिए सच्चा माबूद मानना, हक बरहक माबूद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, और अमली तौर पर अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करे, तब जाकर के सही मानों में इंसान क्या होगा? मुसलमान होगा। कलमे के माने के बारे में अक्सर ये बात होती है। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा पढ़ा जाता है, इस कलमे के अंदर भी लोगों ने शरह करते हुए क्या कहा, माना बताते हुए क्या कहा? मेरे भाइयों, ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है ला राज़िक़ा इल्लल्लाह, ला खालिक़ा इल्लल्लाह, ला मुदब्बिरा इल्लल्लाह। ये बाकायदा अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुदब्बिर नहीं, अल्लाह के सिवा यानी रब होने की, रुबूबियत की सिफात को बयान किया। और अभी मैं मगरिब की नमाज से पहले आपके सामने डॉक्टर इसरार का जिक्र कर रहा था। ये नाम इसलिए आ रहा है बार बार, इसलिए दो वजूहात है इसकी। इसलिए कि शख्स मुनहरिफ है, गुमराह है, अकीदे में, मनहज में, सुन्नत में, फिक्र में गुमराह है। और दूसरी वजह, इस गुमराह को उसकी गुमराही के बावजूद लाइल्मी और नादानी की वजह से हमारे अपने अजीज नौजवान सुबह शाम सुनते हैं और उसे ऐसा लगता है कि पेशीन गोई करने वाला करार देते हैं। लोग कहते हैं ऐसा आदमी तो तारीख में नहीं मिलता, जो उसने 25 साल पहले पेशीन गोई की थी, आज वो पेशीन गोई एक एक करके उम्मत के सामने पेश आ रही। कैसा अकीदा है मेरे भाइयों? पेशीन गोई क्या नबी थे? वो कौन थे? वो वही आती थी। क्या समझते हैं डॉक्टर इसरार को? मेरे भाइयों, कियास है, एक अंदाजा है। अंदाजा कभी सही निकलता है, कभी गलत निकलता। कोई शख्स जो है अंदाजा, जजमेंट, एक अंदाजा लगाता है सूरत हाल को सामने रख करके, और वो अंदाजा सही निकल जाता है, कभी गलत निकल जाता है। तो अगर किसी आदमी के ऐसे अंदाजे अगर सही निकल जाएं, जरूरी नहीं, ऐसा है भी नहीं कि सब सही निकलता है, अगर सही कुछ निकल भी जाए तो क्या हमारे नजदीक वही मैयार है, वही पैमाना है कि आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी जो जजमेंट लगाया, जो अंदाजा लगाया, जो कियास लगाया, वो सही निकला, इसलिए अब हम उसका कलमा पढ़ना शुरू कर दें, उसके होके रह जाएं, उसको अपना मर्जा बना लें, उसी से अपनी वाबस्तगी मजबूत कर लें, उसी की तकरीरें, दुरूस, खिताबात, मसाइल सुनते रहें, जबकि उसके यहां अकीदे ईमान की गुमराही से लेकर हर तरह की गुमराही मौजूद है, हर तरह की गुमराही। उसकी वजह यह है कि बुनियाद सही नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप इन्हीं की किताब उठा करके देखें, इन्हीं की किताब उठा करके अगर आप देखेंगे, और मैं ऐसा नहीं कि आपको राय दे रहा हूं कि किताब पढ़ें, मैं तो आपसे कहता हूं कि आप हरगिज ना उसकी किताब को छुएं, ना उसकी कोई वीडियो सुने, ना कोई छोटी ना बड़ी, हरगिज नहीं। आप ऐसे मुनहरिफीन से दूर रहिए, अपने ईमान के, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए। ऐसा ना हो कि ईमान व अकीदा बिगड़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत की दुआएं करते थे, दिलों को हक पर साबित कदम रखने के लिए अल्लाह से दुआ मांगते थे। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं किया करते थे। तो हम कैसे आजाद हो जाएं कि हर एक को अपना उस्ताद बना लें, हर एक को सुने, हर एक से फायदा उठाएं? कितनी खतरनाक बात। तो खतरनाक मसला है ये, इसलिए बात बार बार अर्ज कर रहा हूं। उनकी किताब है सूरह हदीद की तफसीर, सूरह हदीद की तफसीर, उम्मुल मुसब्बिहात तफसीर सूरतुल हदीद। ठीक है, इस तफसीर की किताब के अंदर आप सोचिए, एक आदमी को दीन की बुनियादों का पता नहीं है, लेकिन कुरान करीम की क्या कर रहा है? तफसीर कर रहा है। कितना खतरनाक मसला है, आप बताइए। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का कलाम वही है, और कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, उसका माना अल्लाह के कलाम से तय होगा। अल्लाह के कलाम का माना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से तय होगा। कुरान करीम का माना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के असहाब ने जो कुछ समझा है उससे तय होगा। लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया, हुकूमत, सियासत, और मेरे भाइयों वो जो फिक्र है ना, दुनिया के अंदर हुकूमत और इख्तिदार वाली फिक्र,
اس کی بنیاد پر قرآن کریم کو، اس کی آیات کو جگہ جگہ اسی معنی میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اور تفسیر سورۃ الحدید کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ سورۃ الحدید میں حدید کا ذکر آیا ہوا، حدید کے معنی لوہا، یعنی جنگ، جدال، لڑائی اور غزوہ اور مقابلہ اور جتھے بندی، یہ سب پہلو اس کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ تو اس کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ لا خالق الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا معنی لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا مدبر الا اللہ۔ ایسے ہی کئی جملے لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر۔ یعنی امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہو میرے بھائیوں، یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ یہ عقیدہ ہی اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی جو ہم کلمے کے اندر دیتے ہیں، اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی صرف ربوبیت، رب ہونے کا عقیدہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ساری گمراہی جڑ جاتی ہے جو کس کی ہے؟ وہ گمراہی اسی کے ساتھ جڑ جاتی ہے جو انہوں نے پھیلائی ہے اپنی اس کتاب میں بھی، اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں، اور ان کی تفسیر قرآن ہے بیان القرآن، جو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کہتے ہیں ایک شخص اگر حکومت قائم نہ کرے، اللہ کی حکومت قائم نہ کرے، تو چاہے وہ صرف اللہ کی عبادت و بندگی بھی کر کر کے مر جائے، تب بھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو۔ دیکھا، ایک طرف ربوبیت کی تعلیم، لا خالق الا اللہ، لا رازق، لا مدبر، یہ سمجھا رہے ہیں ربوبیت، یہ سب کچھ۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف اگر آپ صرف اللہ کی عبادت بھی بندگی بھی کر لیں لیکن روئے زمین پر حکومت کسی اور کی چل رہی ہو، تب بھی آپ صحیح معنوں میں مسلمان۔ یہ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا قاعدہ ہے کہ کوئی رب ماننے سے اللہ کو مسلمان نہیں ہوگا۔ اگر وہ مسلمان سمجھا جاتا تو اللہ کے نبی ان سے جنگ کیوں کرتے؟ اگر خالق رازق ماننے سے اگر مسلمان ہو جاتا آدمی تو اللہ کے نبی جنگ کیوں کرتے؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے، اور عقبہ بن ابو معیط سے، اور سارے مشرکین سے اللہ کے نبی کیوں لڑائی لڑی؟ اسی لیے نا کہ ان کو مسلمان نہیں کاؤنٹ کیا۔ تو رب مان رہے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کی عبادت میں اکیلا اللہ کو عبادت کا تنہا حقدار نہیں سمجھتے، عبادت کسی اور کی کرتے ہیں، سجدہ کسی اور کا کرتے ہیں، دعا کسی اور سے کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ان کو صرف رب ماننے کی بنیاد پر ان کو مسلمان شمار نہیں کیا۔ تو یہ قاعدہ یاد رہے آپ کو، اور جس طرح کی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان تمام گمراہیوں سے ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور تفصیلات سے بیان کیا ہے، میں ان میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ بات ایک آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی۔ ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تسلی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں، مشرکین سے، وہی ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سے اگر آپ پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو ضرور بھی ضرور کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور کیا کہا؟ قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اگر آپ ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں کا رب، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے؟ آپ ان سے پوچھئے مشرکین سے ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے، جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ آسمان اللہ کا بنایا ہوا، زمین اللہ کی بنائی ہوئی، عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا، یہ کہیں گے، مانیں گے۔ اس کے بعد قل من یرزقکم من السماء والارض، یہ ساری بات میرے بھائیو یہ آیت کریم آپ کے سامنے آ چکی پہلے والی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح سے مشرکین مکہ، کفار مکہ کا عقیدہ تھا، اس طرح اگر کوئی عقیدہ رکھے گا صرف ربوبیت کا تو وہ مسلمان کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ توحید کا معنی صرف ربوبیت ہے۔ چار قواعد کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح توحید معلوم پڑ جائے اور صحیح شرک کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے، تاکہ توحید اپنا لیں اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب یہ توحید کمپلیٹ نہیں ہے، یہ توحید جو ہے کمپلیٹ، ربوبیت والی توحید کیا ہے؟ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ رب اگر مانے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ایسی صورت مسلمان کاؤنٹ نہیں ہوگا، مسلمان کاؤنٹ نہیں ہوگا تو ان سے جنگ بھی ہوگی، اسلامی نظام ہوگا تو، اور ایسے لوگ اگر ربوبیت کے عقیدے کے ساتھ مر جائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جہنم رسید ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے۔
इसलिए कि अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में क्या किया उन्होंने, अल्लाह का शरीक ठहराया, लात मनात उज़्ज़ा। और आज इतने सारे कब्रों के, मसारों के, आस्थानों के अंदर जो अल्लाह ताला के बंदे मदफून हैं, उन सबको जिन जिन लोगों ने पूजा है, रुकू किया, सजदा किया, हाथ उठाया, दुआ किया, मुराद मांगी, सर टेका, पनाह मांगी, फरियाद किया, इस्तिआनत किया और सारी चीजें, तो ऐसे लोगों की अगर मौत बगैर तौबा किए हुए हो जाएगी तो ये सब के सब कहां जाएंगे, जहन्नम रसीद। तो कितना खतरनाक मसला है मेरे भाइयों, किस कदर संगीन है यह मसला, जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को एहसास नहीं, लोगों को शऊर नहीं है। तो तौहीद सिर्फ और सिर्फ रुबूबियत के इकरार का नाम नहीं है। आज मुफक्किरीन जो हैं, जो बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा दानिश्वरी और बहुत ज्यादा अपनी ज़हानत फतानत का तस्करा करते हैं, ऐसे लोगों के अकीदों में यही हाल है। इनका अकीदा कितना है, अल्लाह तबारक व तआला ही खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है। इसलिए क्या कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात में अकेला है, अल्लाह ताला अपनी जात में अकेला है। और क्या कहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफात में अकेला है, उसका कोई मुशाबे नहीं है, अल्लाह ताला अपने कामों में अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। इतना बोलते हैं। इन सारी बातों में अल्लाह की तौहीद इबादत में आई? तौहीद अल्लाह की इबादत में जो मतलूब है उसका तो जिक्र ही नहीं आया। इतना अकीदा तौहीद का तो मुशरिकीन मक्का भी रखते थे, कुफार मक्का भी रखते थे। तो इतने अकीदे से कोई मुसलमान कैसे होगा? इतने अकीदे से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। बहरहाल खुलासे कलाम शेख सालेह फौजान कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो जा करके इन लोगों की किताबों का मुताला भी कर सकता है। इनकी किताबों में यही लिखा हुआ है। और जितनी तौहीद की बात ये कर रहे हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह एक, अल्लाह एक है, ये सब रुबूबियत से ताल्लुक रखता है। और ये पूरा ईमान जितना बयान कर रहे हैं, इतना ईमान तो अबू जहल का भी था, अबू लहब का भी था। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये है मेरे भाइयों। उसके बाद इसके बाद अब अगर कोई ये समझता है कि इतना अकीदा रखने से हम मुसलमान हो जाएंगे, तो उसकी तौहीद में खलल है कि नहीं? उसकी तौहीद बराबर नहीं है, उसकी तौहीद दुरुस्त नहीं है, उसकी तौहीद नजात देने वाली नहीं है, नजात दिलाने वाली नहीं है, बल्कि ये नाकिस तौहीद है, इनकम्प्लीट। बहरहाल उसके बाद यह क्या हो गया, एक कायदा हमने मुख्तसरन एक कायदा पढ़ लिया, चूंकि मारूफ है, ज्यादातर आमतौर पर यह चीज बयान होती है। अच्छा, एक बात और जिक्र करते इसी के साथ में, इसी से मुताल्लिक, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत में वहदानियत को बयान करने के लिए अपनी रुबूबियत की वहदानियत को बयान किया है। यानी अल्लाह कुरान करीम में अक्सर और बेशतर जगहों पर क्या करता है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ऐसे ही है कि अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत बयान करता है। अल्लाह रब है, अल्लाह रोजी रेसा है, जमीन का आसमान का पैदा करने वाला है, आंखों का कानों का मालिक है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बारिश बरसाता है, अल्लाह तबारक व तआला खेतियां उगाता है। ये रब वाली खुसूसियात और सिफात को बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ये हुक्म देता है कि जब सब अल्लाह करता है, रुबूबियत किसकी है, अल्लाह की, तो इबादत किसकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की होनी चाहिए। जो सब दे रहा है, इबादत का हकदार भी तो वही है। जो हमें अता कर रहा है उसी का सजदा करो, जो हमें दे रहा है उसी का सजदा करो, जो हमें नवाज रहा है उसी का सजदा करो। भला जब अल्लाह तबारक व तआला ही रब है तो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद कैसे बनाते हो? इसी को कहा जाता है रुबूबियत से दलील पकड़ करके उलूहियत की दावत देना, रब की बात को साबित करके अल्लाह की उलूहियत की दावत देना। यह कुरान करीम का उस्लूब है और अल्लाह के कलाम की आयतें भरी पड़ी हुई हैं। सूरतुल फातिहा आप जब शुरू करेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आपको सब मिलेगा, आपको सब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही में आपको सब मिलेगा। अल्लाह की उलूहियत भी है, अल्लाह की रुबूबियत भी है और अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात भी है। देख लो, अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह क्या है, उलूहियत, रब रुबूबियत है कि नहीं, और रुबूबियत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से एक नाम क्या है, रब। अल्लाह के नामों में से एक नाम क्या है, रब। और उस नाम में की सिफत क्या बनती है, रुबूबियत, यानी तरबियत करना, देख रेख करना, निगरानी करना, अपने बंदों को जो कुछ चाहिए वो सब अता करना।
और ये अल्लाह तबारक व तआला सबको अता कर रहा है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 सिमतों से जो कुछ हमें और आपको अता हो रहा है, मिल रहा है, सब अल्लाह तबारक व तआला का अता करदा है या नहीं। तो इस तरीके से हमें यह बात भी जाननी जरूरी है कि रुबूबियत से उलूहियत पर इस्तिदलाल, रब अल्लाह है, वही सजदे का भी हकदार है, वही इबादत का भी हकदार है। यह पहला कायदा था जो हमें जानने की जरूरत थी। दूसरा कायदा क्या है, यह देखिए, यह आजकल ये मसला बड़ा नाजुक है। दूसरा कायदा यह है कि जो मुशरिकीन मक्का है, कुफ्फार मक्का, मुशरिकीन मक्का, वो भी और आजकल वाले भी, आजकल के जो मुशरिकीन हैं वो भी, इन सब के बारे में यह है कि जब ये अल्लाह तबारक व तआला के सिवा औलिया, सालिहीन, अंबिया, रसूल, फरिश्ते, जिन, शैतान, देवी देवता, सूरज, चांद, सितारे, किसी को भी जब ये पुकारते हैं, है ना, पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज देते हैं, अपनी मुसीबतों में फरियाद करते हैं, और जब इनको कहा जाता है कि आप क्यों उनको पुकारते हैं, तो क्या जवाब देते हैं? वो जवाब देते हैं कि हम लोग सिर्फ उनको इसलिए बुलाते हैं, उनकी तरफ इसलिए तवज्जो देते हैं, मुतवज्जे होते हैं, इसलिए ताकि वो हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर दे, और क़यामत के दिन जब हम मुसीबत में होंगे तो वो हमारी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कर। यही बात मुशरिकीन अरब भी कहा करते थे, और आजकल के कुबूरी कब्र परस्त भी यही अकीदा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। ये सूरह ज़ुमर की शुरू की आयत करीमा है, तीसरी आयत करीमा। आप देखिए इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया। अल्लाह फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर दूसरों को मददगार बना लिया है, जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा को मददगार बना लिया है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग इन लोगों की इबादत इसलिए करते हैं, सिर्फ हम लोग इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर दें। यह है मसला। अब अल्लाह से करीब करने का हवाला दें, अल्लाह से करीब करने का हवाला दें, यह अगली बात आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला के यहां ये हमारी सिफारिश करेंगे, ये अल्लाह के करीब बंदे हैं, महबूब बंदे हैं, प्यारे बंदे हैं, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला से करीब कर देंगे, और क़यामत के दिन हमारी सिफारिश अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में करेंगे। ये दोनों बातें बोलें, इनमें से कोई एक बात बोलें, या इनके अलावा कोई तीसरी चौथी बात बोले, कोई भी बात बोले, लेकिन अल्लाह की सिवा की जो इबादत कर रहे हैं वो क्या है? वो शिर्क है। करीबी बन जाने के लिए, सिफारिशी बनाने के लिए किसी को पुकारना, किसी के लिए सजदा करना, किसी के लिए रुकू करना, किसी के सामने हाथ उठाना, दुआएं करना, खौफ करना, उम्मीद लगाना, ये सब का सब इबादत का काम है। और ऐसा करने वाले इन लोगों के लिए जो कर रहे हैं, इन लोगों के लिए, अल्लाह के मां सिवा के लिए जो कर रहे हैं, ये सब के सब शिर्क कर रहे हैं। ये दूसरा कायदा। तो ये कायदा बड़ा अहम है, बहुत बुनियादी है। उस जमाने में भी लोग यही बात कहते थे। हम कभी नहीं कहते कि ये ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह है, बंदा गैसु दराज हुसैनी अल्लाह है, हम कभी नहीं कहते। समझ रहे हैं? आज वाले भी यही कहते हैं। वो लात मनात उज्जा के बारे में क्या कहते? हम कहां कहते हैं कि ये अल्लाह है? हम कहां कहते हैं कि अल्लाह है? हम कहां कहते हैं फरिश्तों की क्यों अल्लाह है? हम कहां कहते हैं कि अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी और रसूल लोग जो है, नबी और रसूल अल्लाह है? हम नहीं, उनको अल्लाह नहीं कहते। हाँ, मसला यह है कि हम गुनहगार हैं, हम बदअमल हैं, बदकिरदार हैं, हमारे करतूत काले हैं। हम कैसे अल्लाह तबारक व तआला का सामना करें? हमारी तो आकिबत, हमारा तो अंजाम बहुत मुश्किल है। बहुत आसान लबो लहजे में, जुमले में ये बातें आपके सामने हो रही हैं। इसका मकसद ये है कि बहुत आसानी से हर वो शख्स सुन सके, हर वो शख्स समझ सके जो सुन सके आसानी के साथ। अब ये जो मसला है कि हमने कब कहा अल्लाह है? जैसे उन लोग कहते थे कभी, हमने कभी नहीं कहा कि लात मनात उज़्ज़ा ये अल्लाह है। ऐसे आज वाले भी कहते हैं कि हमने कब कहा कि ये सारे है ना औलिया, सालिहीन, बुजुर्गान, बाबा, पीर,
नबी, रसूल, फरिश्ता, जिन, हमने कब इनको अल्लाह कहा है? हम कभी नहीं कहते कि वो अल्लाह है। हाँ, हम जो इबादत इनकी करते हैं, जो इनकी कब्रों पर जाकर के सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, इनकी कब्रों का तवाफ करते हैं, इनके सामने हाथ उठाते हैं और हम इनको या कह के पुकारते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या गौसे आजम, या सैयद बदवी, या सैयद रिफाई, या अली हजवेरी, जो भी हम कह करके पुकारते हैं, ये इसलिए सिर्फ पुकारते हैं ताकि ये अल्लाह के यहाँ बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, क़यामत के दिन ये हमारी सिफारिश कर दें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, और हम बहुत दूर हैं, ये बहुत करीब हैं, तो ये अपनी कुर्बत की वजह से हमें अल्लाह से करीब कर दें। इन दो हवालों से इन लोगों ने किया था। आज भी जैसा कि अर्ज किया गया, आज का भी कब्र की परस्तिश करने वाला, कब्र पूजने वाला हमारा एक भाई, उससे भी आप पूछें, भाई ये कब्र की पूजा क्यों करते हो? ये इबादत का हक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है, आप क्यों शिर्क कर रहे हैं? तो फौरन क्या कहता है, भाई हम कहां अल्लाह तबारक व तआला का शरीक कर रहे हैं उसको? हमने कब कहा कि वो अल्लाह है? हमने कभी नहीं कहा वो अल्लाह है। वो अल्लाह के वली हैं, पहुंचे हुए लोग हैं, नेक लोग हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उनका मकाम बहुत ऊंचा है, अल्लाह से बहुत करीब है, तो हम तो इसलिए इनकी इबादत करते हैं कि इनके तुफैल में हम भी जन्नत में चले जाएंगे, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारी सिफारिश हो जाएगी, हम अल्लाह से करीब हो जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ऐसा अकीदा मुशरिकीन अरब ने रखा और आजकल के मुशरिकीन भी रखते हैं। याद रहे कि ऐसा करने वाले कभी भी छोड़े नहीं जाएंगे, मुशरिक ही शुमार किए जाएंगे। अब ये शिर्क, पहले वाली कायदे में हमने क्या पढ़ा? तौहीद में गलत फहमी हो रही है, लोग रुबूबियत को सब कुछ समझ रहे हैं, रब मानने से कोई अल्लाह को रब मानने से कोई मुसलमान नहीं होगा। वहां जो गलत फहमी दूर हो गई ना, सही तौहीद मालूम पड़ रही, यहां सही शिर्क पता चल रहा है। दूसरे कायदे में क्या मालूम पड़ रहा है? शिर्क सही पता चल रहा है। अब लोग इसको शिर्क नहीं समझते, कहते हमने उनको अल्लाह थोड़ी माना है, हम तो इसलिए इबादत करते हैं कि हमें अल्लाह से करीब करते हैं, सिफारिश। पता ये चला कि ये जो अकीदा है ना, ये शिरकिया अकीदा है, लेकिन ये गुमराही है, लोग शिर्क को नहीं समझ रहे हैं। इस चीज को जो शिर्क है, इसको लोग शिर्क नहीं समझते हैं, इसको शिर्क नहीं समझते, जबकि ये क्या है? ये शिर्क है, और ऐसा करने वाले मुशरिक हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्या करार दिया? देखो आगे, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़ार, अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता जो झूठा हो, कफ़ार। कफ़ार का दो माना, कुफ्र करने वाला हो या नाशुक्री करने वाला हो। नाशुक्री भी करने वाला अगर आप इसका माना समझते हैं, नाशुक्री समझ गए कि नहीं समझ गए? सब कुछ अल्लाह दे रहा है, तो सज्दा इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की। किसको कर रहे हैं ये? अल्लाह के बंदों की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों के लिए सर टेक रहे हैं। तो नाशुक्री है कि नहीं नाशुक्री? शुक्रगुजारी ये है कि जो अल्लाह सब दे रहा है हमें, इबादत और बंदगी भी हम उसी अल्लाह तबारक व तआला की करें। तो ये जो बात आपके सामने है ना, ये मसला बहुत पुराना है, बहुत कदीम है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तो जो अभी आपके सामने पहली आयत करीमा आई है, इस आयत करीमा का जो ताल्लुक है, उसका ताल्लुक कुर्बत से है, हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। दूसरी जो आयत करीमा है, उसमें सिफारिश का बयान है, सिफारिश की हमें अल्लाह से क्या करेंगे? हमारी सिफारिश कर देंगे। हम गुनहगार हैं, कैसे बख्शिश होगी, कैसे माफ़ी होगी? हम तो अल्लाह के पास पहुंच नहीं सकते, रोना धोना नहीं कर सकते, सिफारिश नहीं कर सकते, यानी गिरिया वजारी नहीं कर सकते। ये हम जिनकी इबादत कर रहे हैं, ये हमें अल्लाह से करीब करेंगे और अल्लाह के हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह, ये बंदा बड़ा कमजोर है, गुनहगार है, अल्लाह इसको माफ फरमा दे, इसको जहन्नम से आजाद कर दे, इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। इस चीज की सिफारिश करें। सिफारिश ये मसला भी बहुत अहम है, और सिफारिश के मामले में बहुत सारी गुमराहियां हैं। पर ये मसला इतना हमारे सामने वाज़ेह हो गया कि कुर्बत की जो बात है, कुर्बत का हवाला देकर के कोई किसी अल्लाह के अलावा के लिए इबादत करे, या सिफारिशी बनाने की लालच में कोई किसी की इबादत करे, बहरहाल अल्लाह की सिवा की इबादत करने वाला मुशरिक। अल्लाह नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन इबादत का काम अल्लाह की सिवा के लिए कर रहा है, इसलिए वो क्या है? वो मुशरिक। उसी हाल में अगर उसकी मौत हो जाएगी तो वो शिर्क पर मरेगा और जहन्नम रसीद होगा। सिफारिश वाली जो बात है, कितना गलत अकीदा बना रखा है इन लोगों ने सिफारिश का अकीदा बना रखा है कि सिफारिशी बनेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये काम करने वाले सिफारिशी बनाएंगे, सिफारिश करेंगे, इस नाम पर वो लोग
جو ان کا سجدہ کر رہے ہیں، اولیاء کا، صالحین کا رکوع کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ استعاذہ کر رہے ہیں، شرک کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سارے کام کیسے ہیں؟ شرکیہ کام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرکیہ کام کرنے والے اللہ کے ہاں سفارش کی امید کیسے لگائے بیٹھے ہیں؟ مشرک کے لیے سفارش ہوگی اللہ کے ہاں؟ نہیں ہو۔ سفارش کے لیے دو شرطیں بنیادی، دو شرطیں ایک دم بنیادی ہیں، قرآن کریم کی آیات میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش وہ کرے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کی پرمیشن دے گا، اجازت دے گا۔ بلا اجازت تو کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، بات نہیں کر سکے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان سبحانہ و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی بات کر سکے گا۔ تو سفارش کرے گا کون؟ جسے اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ بلا اجازت سفارش ہو ہی نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کوئی بھی ہو، بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عزیز اور محبوب اور پیارا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود ہمارے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے نا، دیگر کتابوں کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفارش کریں گے، شفاعت عظما بڑی والی سفارش کریں گے، تو اجازت ملے گی پہلے، بعد میں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں آؤں گا، اللہ کے عرش تلے سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا قل تسمع، سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، ہے نا؟ اور آپ وشفع تشفع، آپ کہیں گے سنی جائے گی آپ کی بات، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اجازت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ تو اب کوئی سید بدوی رفائی یا اللہ کے نیک بندے بھی ہیں تو سفارش کیسے کر سکتے ہیں بلا اجازت؟ بلا اجازت سفارش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کیسے یہ قاعدہ بنا لیا جائے کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش کر دیں؟ کس نے کہا کہ سفارش کر سکیں گے؟ کس نے بتلایا کہ سفارش کرنے کی پرمیشن ملے گی؟ غلط ہے کہ نہیں غلط؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، سفارش کے لیے دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے لیے سفارش ہو، جس کو مشفوع لہو کہتے ہیں، ایک ہے شافع سفارش کرنے والا، پھر ایک مشفوع لہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے۔ تو جس کو سفارش کرنا ہے اس کو اللہ کی اجازت ملنی چاہیے، اور جس کے لیے سفارش کرنا ہے اس سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اللہ راضی نہیں ہو سکتا کبھی شرک سے، نہ مشرک سے۔ اللہ نہ شرک سے راضی ہے نہ مشرک سے راضی ہے۔ اللہ کس سے راضی؟ کس کو پسند کرتا؟ ایمان کو، توحید کو، ہے کہ نہیں؟ ایمان، توحید، یہ اللہ کی رضا کا سب سے بڑا کام ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا کام ہے، بدترین گناہ کا کام شرک باللہ، سب سے بڑی نیکی دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، مشرکین کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں اولئک ھم شر البریہ، وہ پوری دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں مشرکین۔ اب ان مشرکین کی سفارش اللہ کے یہاں ہوگی؟ اللہ کے یہاں بدترین لوگ ہیں۔ تو سفارش کرنے کے لیے ضروری ہے اجازت ملے کرنے والے کو، اور جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اس سے ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں بات صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوگا؟ مشرک سے نہیں بلکہ موحد سے، سچے مومن سے اللہ راضی ہوگا۔ اس سے معلوم پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک سے، کافر سے راضی نہیں ہے، اس لیے سفارش کسی مشرک کی، کافر کی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر سفارش کس کی کریں گے؟ انبیاء، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے سفارش کریں گے؟ شرک کرنے والے کی سفارش ہوگی نہیں تو پھر کس کے لیے؟ ہاں یہی مسئلہ ہے، شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ، نفاق کے علاوہ، الحاد کے علاوہ، زندیقیت کے علاوہ جو کون سے کام ہیں؟ ایسے کام ہیں جو ایمان و عقیدے میں خلل والے کام نہیں ہیں، عملی کوتاہیاں ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے تو کیا ہوا؟
गुनाह कबीरा भी है, लेकिन वो ईमान का खलल नहीं है, शिर्क का नहीं मसला है, कुफ्र का मसला नहीं, इल्हाद बेदीनी जिंदगियत का मसला नहीं है, बल्कि क्या मसला है, गुनाह कबीरा कर रखा है। नमाज में कोताही है थोड़ी, झूठ बोला है मिसाल के तौर पर, खयानत किया है मिसाल के तौर पर, है कि नहीं, मिसाल के गुनाह कबीरा जो शिर्क तक न पहुंचता हो, ऐसे गुनहगारों की तौहीद सलामत है, ईमान खालिस है उनका। अब उनके यहां गुनाह है, गुनाह कबीरा, इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहते हैं औसातुल मुमिनीन, औसातुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों में गुनहगार है, तौहीद परस्त, तौहीद में खलल नहीं है, लेकिन है उसके यहां गुनाह। ऐसे लोगों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। समझ गए ना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया अपनी हदीस के अंदर, शफाअती ली अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए है। शिर्क नहीं किया है लेकिन बड़े गुनाह उनके यहां मौजूद हैं। चोरी करना बड़ा गुनाह, गीबत करना, खयानत करना, शराब पीना, जिना करना, बदकारी करना, ये सब कौन से गुनाह है, ये सब बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह है। समझ गए, उनके लिए सिफारिश होगी। तो अब इन लोगों ने बना रखा है कि फला हमारी सिफारिश करेंगे। अब सवाल है कि अपना हाल क्या है, मुशरिक हो और उम्मीद लगाए बैठे हो कि हमारी सिफारिश करेंगे। बात समझ में आ गई। इसलिए ये अकीदा गलत है, ये अकीदा बातिल है। तो ये दो शर्तें जब तक नहीं पाई जाएंगी कोई भी आदमी सिफारिश न कर सकेगा, न किसी की सिफारिश हो सकेगी। इन दोनों शर्तों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग भी आयतों में बयान फरमाया है, और उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को एक आयत में भी बयान फरमाया है। वह कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा। सूरह नज्म की आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सारे फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं ना अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह ने फरमाया इनकी सिफारिश कोई काम नहीं आएगी जब तक कि दो शर्तें एक साथ में नहीं पाई जाएंगी। वो दोनों शर्तें साथ में बयान, इल्ला मिन बादी अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाउ व यर्दा, दो शर्तों के बगैर। नंबर एक, पहली शर्त क्या है, मिन बादी अन यअज़न अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की इजाजत मिलने के बाद, सिफारिश करने वाले को सिफारिश करने की इजाजत मिल जाएगी तब। दूसरी शर्त वयर्दा, और जिसके लिए सिफारिश करनी है उससे अल्लाह तबारक व तआला राजी होगा तब। अगर अल्लाह ताला इजाजत दे दिया कि चलो सिफारिश कीजिए आप, लेकिन अब चाहते हैं इनकी सिफारिश करें, उनकी करें, उनकी करें, लेकिन इनके ईमान व अकीदे सलामत नहीं, इनके अकीदों में शिर्क है, कब्र परस्ती है, औलिया और सालिहीन के सामने सर झुकाया, इबादत किया, सजदा किया, रुकू किया, उसी हालत में मौत हो गई, तौबा नहीं किया, तो इजाजत मिली है सिफारिश करने की, लेकिन किसके लिए सिफारिश होनी है, उससे अल्लाह का राजी होना भी जरूरी है। मुशरिक से अल्लाह कब राजी होगा, कैसे राजी होगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, मुशरिक शिर्क किया जाए अल्लाह के साथ, इस गुनाह को अल्लाह ताला हरगिज नहीं बख्शेगा। तो अल्लाह ने फरमा दिया बख्शिश नहीं होगी, तो फिर मुशरिक के लिए कोई सिफारिश करे, अल्लाह सिफारिश कबूल फरमा ले और उसको बख्श दे, काम मुमकिन है। अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया है मुशरिक की बख्शिश नहीं हो सकती है। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से हमारी और आपकी समझ में आ जानी चाहिए। इसमें भी आमतौर पर बे इंतहा गलतियां मौजूद हैं। बहरहाल खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे सबसे ज्यादा बुलंद मकाम अल्लाह के बंदों में आप भी बगैर इजाजत की सिफारिश नहीं कर सके। और किसके लिए करेंगे अल्लाह के नबी ने बतला दिया। आज मैं अक्सर कहता हूं मेरे भाइयों, ये कि अफसोस ही की बात है ना कि सिफारिश करने के मामले में एकदम साफ फैसला है कि मुशरिक के लिए सिफारिश नहीं हो सकती है, लेकिन जो शिर्क में डूबा हुआ है मुआशरे का तबका, वो सबसे ज्यादा सिफारिश की और शफाअत की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। जो सबसे ज्यादा शिर्क में मुब्तला है वही सबसे ज्यादा सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। शाफिउल मुज़निबीन, अल्लाह के नबी गुनहगारों की सिफारिश करने वाले, गुनहगारों की सिफारिश, मुशरिकों की सिफारिश करने वाले नहीं। अल्लाह ने साफ फरमाया ना, क्या फरमाया साफ लफ्जों में, शफाअह नंबर एक। नंबर दो क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, हमीम। नंबर तीन अंसार। नंबर चार फिदिया, कफ्फारा। मुशरिक को
छुटकारे का कोई रास्ता नहीं होगा। ना तो सिफारिश किसी की होगी उसके हक में, ला खुल्ला, ना तो जिगरी दोस्ती कोई काम आएगी। हमीम कहा, जिगरी दोस्ती कोई काम नहीं आएगा। मुमालिस ज़ालिमीन अबिन अंसार, कोई मददगार नहीं होगा। और क्या होगा? आखिरी चीज है फिदिया। फिदिया, अगर दुनिया की सारी दौलत किसी आदमी के पास हो और वो शिर्क करके मरा हो और वो अल्लाह तबारक व तआला उससे कहे क़यामत के दिन कि अगर तेरे पास पूरी दुनिया की दौलत हो तो क्या तू अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए सारी दौलत दे देगा अल्लाह के रास्ते में? तो कहेगा अल्लाह मैं दे दूंगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस पूरी दौलत को भी अगर कोई दे दे, मिसाल के तौर पर अल्लाह ही का दिया हुआ है वो, अगर कोई सब दे दे अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में, तो भी अल्लाह ताला उस मुशरिक को जहन्नम से नजात नहीं देगा। क्योंकि ना फिदिया, ना मददगार, ना दोस्त अहबाब, ना शफात, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बस शिर्क करने वाले का अंजाम ये बात हो गई। उसके बाद क्या है? ये दूसरा कायदा। तीसरा कायदा क्या है मेरे भाइयों? तीसरा कायदा ये देखिए, इसमें तो और ज्यादा गुमराहियां मौजूद है। दोनों बातें अच्छी तरह से रखें। पहला कायदा क्या था? सिर्फ रब मानना अल्लाह के यहां नजात के लिए काफी नहीं है, मुसलमान होने के लिए काफी नहीं है, नजात पाने के लिए काफी नहीं है, जब तक कि तौहीद उलूहियत एकदम खालिस उसके यहां ना हो। दूसरा कायदा हमने क्या पढ़ा? दूसरा कायदा यह है कि जो लोग भी अल्लाह के सिवा को पुकारते थे, दुआ करते थे, उनकी परस्तिश पूजा करते थे, आज भी करते हैं, ऐसे लोग अपने इस काम का बहाना क्या बयान करते हैं? हम इनको अल्लाह नहीं मानते, इन कब्र वालों को अल्लाह नहीं मानते। बस मसला यह है कि हम गुनहगार हैं, बदअमल हैं, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला से बहुत करीब हैं। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह से करीब कर दें और हमारे लिए क़यामत के दिन सिफारिश कर दें। ऐसा अकीदा रखने वाले और कुर्बत के लिए, करीब होने के लिए, सिफारशी बनाने के लिए अल्लाह के सिवा की इबादत करने की वजह से ये भी क्या है? मुशरिक है। अल्लाह कहे न कहे कब्र वालों को, उनको रब कहे या न कहे, इबादत का हक अल्लाह के सिवा को दे रहे कि नहीं दे रहे? इबादत का हक अल्लाह के सिवा को दे रहे हैं, इसलिए वो क्या है? मुशरिक है। तो ये कुर्बत का हवाला, सिफारिश का हवाला देकर के कोई भी अपने आप को मुसलमान साबित नहीं कर सकता और जन्नत से बहरावर नहीं हो सकता। तीसरा कायदा ये देखिए, बड़ा अजीम शान का तीसरा कायदा। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब उम्मत में तशरीफ लाए, नबी बना करके भेजे गए, तो उस वक्त जो लोग आपके सामने थे, जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, कुरान सुनाया, अपनी हदीस सुनाई, तौहीद की दावत दी, शिर्क से मना किया, सुन्नत के रास्ते पर आने की तलकीन की, जो भी आपके सामने थे, जितने भी थे, अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिन लोगों के सामने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जिन लोगों के सामने भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाया रखा, कि एक तबके के लोग नहीं थे, अलग अलग किस्म के लोग थे, और अलग अलग किस्म के होने के बावजूद भी अल्लाह के नबी ने इन पर हुक्म लगाने में कोई फर्क नहीं किया। थे वो अलग अलग। मिसाल के शेख कहते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो फरिश्तों की इबादत करते थे, फरिश्तों की इबादत करते थे, गैरुल्लाह है कि नहीं, अल्लाह के सिवा, अल्लाह की सिवा की इबादत करने वाले कई तरह के थे। एक तबका ऐसा था जो फरिश्तों की इबादत करता था, एक तबका ऐसा था जो नबियों को, रसूलों को की इबादत करता था, सालिहीन और बुजुर्गों की इबादत करता था। एक तबका ऐसा भी था जो पत्थर की, यानी मूर्तियों की, देवी देवताओं की, और ऐसे ही दरख्तों की, पेड़ पौधों की पूजा करता था। एक तबका ऐसा भी था जो सूरज की और चांद की पूजा करता था। ये सब टाइप के लोग थे कि नहीं थे? हर किस्म के लोग थे। अब इसमें देखिए कितने किस्म के लोग हो गए। फरिश्ते की इबादत करने वाले, फरिश्तों का मकाम कितना ऊंचा है। फरिश्ते अल्लाह के प्यारे हैं कि नहीं प्यारे? अल्लाह के मुकर्रब बंदे। तो इतने ऊंचे अल्लाह के, इतने ऊंचे बंदों की इबादत करने वाले भी थे, नंबर एक। दूसरा, नबियों की, रसूलों की इबादत करने वाले, नबियों का, रसूलों का मकाम अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा ऊंचा है। बंदों में, इंसानों में सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम किसका है? मिट्टी की मखलूक में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह तबारक व तआला नबियों का, रसूलों का रखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए सालिहीन, नेक लोग, अल्लाह के नेक बंदे, बुजुर्गान, उनकी
उनको वो लोग भी, उनकी पूजा भी करते थे लोग। अब उसके देखिए इसी बीच में ऐसे लोग भी थे जो पत्थरों की और दरख्तों की इबादत करते थे। देखो पत्थर, बेजान पत्थर पड़ा हुआ है, दरख्त है बेजान, उसकी इबादत करते थे। देखा आपने कितना ऊंचा भी है इबादत किया जाने वाला और कितना नीचा भी है। फरिश्ते भी हैं, नबी और रसूल भी हैं, सालिहीन भी हैं, और मूर्तियां भी हैं, देवी देवता भी हैं, पत्थर भी हैं, दरख्त भी हैं, और सूरज चांद जैसी मखलूक भी है, उसकी इबादत करने वाले भी थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम किस्म के मुशरिकों को एक दर्जे में रखा, सबसे लड़ाई लड़ी, जंग किया, कोई फर्क नहीं किया। अल्लाह के नबी ने कोई फर्क नहीं किया। अरे ये लोग फरिश्तों की इबादत कर रहे हैं, इनका मकाम तो बड़ा ऊंचा है, ये तो रसूलों की इबादत कर रहे हैं, इनका मकाम तो बड़ा ऊंचा है, इनको नजरअंदाज कर दो। फरिश्तों की पूजा करने वालों को नजरअंदाज कर दो, रसूलों की, नबियों की इबादत करने वालों को क्या करो, नजरअंदाज कर दो, इनको छोड़ दो। ये मूर्ति पूजने वाले इनको पकड़ो, ये दरख्त की पूजा करने वाले इनको पकड़ो, ये सूरज चांद के पूजने वालों को पकड़ो। अल्लाह के नबी ने ऐसा कोई फर्क नहीं किया। अल्लाह के नबी ने सबको क्या कहा, सब के सब मुशरिक हैं, सब के सब जंग के हकदार हैं, जान माल आबरू के लिए के सिलसिले में ये एक दर्जे में है। मुसलमान कोई नहीं है, चाहे नबी को पूछता है तो क्या हुआ, शिर्क कर रहा है। फरिश्तों को पूछ रहा तो भी क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है। देवी देवताओं को, कब्रों को, शजर को, हजर को, सूरज को, चांद को, है ना, किसी की भी इबादत करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई फर्क नहीं किया। ये कितना अजीमुशान कायदा है, कितना अजीमुशान कायदा। इस कायदे में देखें आप कितनी अहम बात बयान की गई। सबसे पहली बात तो ये है इसके अंदर कि ये सोचा जा रहा है, मुशरिकीन अरब भी सोचते थे और आज के लोग भी सोचते हैं, आज के लोग भी सोचते हैं। और आएगी बात, आज के लोग जो है ना मुशरिक, पिछले जमाने के, अल्लाह के नबी के जमाने के मुशरिकों से कई गुना ज्यादा बदतर हैं, गए गुजरे हैं। शिर्क बहरहाल शिर्क है, मुशरिक बहरहाल मुशरिक है, लेकिन अगर आप समझे, मुआजना करें तो पिछले लोगों का शिर्क आजकल के लोगों के शिर्क के मुकाबले में गनीमत था। आज के मुशरिकीन का शिर्क पहले जमाने के मुशरिकीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा गंदा और घिनौना है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि वो शिर्क अच्छा था, शिर्क होने में दोनों शिर्क हैं, लेकिन इनका वाला शिर्क, आजकल के दौर के मुशरिकीन का शिर्क पहले जमाने के मुशरिकीन के शिर्क से क्या है, हद दर्जा और ज्यादा घिनौना और गंदा है। कैसे, यहां देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यह समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम गैरुल्लाह के पूजा करने वालों में कोई फर्क, सबको एक दर्जे में रखा। सब के सब क्या है, मुशरिक। जिब्रील अमीन को अगर पुकारता तो भी मुशरिक, अगर देवी देवताओं को, मूर्तियों को पूछता है तो भी मुशरिक, अल्लाह के नबियों को, रसूलों को अगर पुकारता है तो भी मुशरिक, किसी मक्खी मच्छर को आवाज देता है तो भी मुशरिक। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, सबके सब क्या है, मुशरिक करार पाएंगे। अल्लाह के नबी ने इन सबसे जंग लड़ी, सबसे लड़ाई लड़ी। अल्लाह तबारक को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फर्क नहीं किया, ऐसा फर्क नहीं किया कि ये तो फरिश्तों वाले हैं, ये तो नबियों वाले हैं, रसूलों वाले हैं, ये देवी देवताओं वाले, ये मूर्तियों वाले, ये सूरज वाले, सारे, कोई फर्क नहीं किया। अल्लाह के ने सबको मुशरिक करार दिया और सबसे यकसां लड़ाई लड़ी, जंग किया, सबकी जान माल आबरू को पामाल किया गया, इसलिए कि शिर्क करने वाला मुशरिक जो है उसका कोई एहतराम नहीं, ना उसकी जान महफूज, ना उसका माल महफूज, ना उसकी आबरू। मैदान जंग में आएंगे, उनसे लड़ाई लड़ी जाएगी, वो मारे जाएंगे तो मारे जाएंगे। इस्लामी निजाम होगा तो, इस्लामी निजाम के हिसाब से बात चल रही है। आजकल के माहौल में इन इख्वानियों, मौदूदियों और लश्करियों और कुतबियों और ISIS और इन सब फसादियों और आजकल हमास और हिजबुल मुजाहिदीन और फला और नहजा और नुसरा, इन तमाम लोगों के जो दंगे फसाद हैं, इनका जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लामी जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामी जिहाद दंगे फसाद के लिए नहीं आया, इस्लामी जिहाद फितना पैदा करने के लिए नहीं आया, फितना खत्म करने के लिए आया, फितना खत्म करने के लिए आया। तो बहरहाल यहां गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए क्या कहा, यहां देखिए यहूदी क्या क्या कहते हैं इनको, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा की इबादत करने वालों में कोई फरिश्तों की इबादत करने वाला है,
تو ایسا نہیں کہ فرشتوں کی عبادت کرتا ہے تو چلو چھوڑ دو، اسے جنگ نہیں کی جائے گی، فرشتوں کا مقام بڑا اونچا، ایسا نہیں کیا جائے، نہیں کیا اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرق نہیں کیا، سب کو مشرک قرار دیا اور سب کے ساتھ وہی سلوک ہوا، بلا تفریق سیم سلوک ہوا، سب کے سب مشرک ہیں، دائرے اسلام سے خارج ہیں، جب تک کہ توبہ کر کے سچی توحید کے علمبردار نہ ہو جائیں، سچی توحید کا عقیدہ نہ بنا لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی اپنے فرمان میں اسے کھول کر کے وضاحت سے بیان فرمایا۔ اب یہاں شیخ نے رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا ہے، شیخ الاسلام نے ان تمام باتوں کی دلیل پیش کی ہے۔ فرشتوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل، نبیوں کی رسولوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل، دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل، صالحین کی بزرگوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل، سورج چاند ستاروں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی دلیل، اور ایسے ہی مورتیوں کی، درختوں کی عبادت ہوتی تھی، اس کی بھی دلیل۔ ان تمام دلیلوں میں اگر ہم داخل ہوں گے تو وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اور ایک بات جو اخیر میں ہے وہ رہ جائے گی، صرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ ہی کی آیت کریمہ میں، اللہ نے فرمایا لڑو ان سے، کن سے لڑو؟ مشرکین سے لڑو، مشرکین سے کیا کرو؟ لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ شرک۔ فتنہ کیا باقی نہ بچے؟ یعنی شرک، روئے زمین پر شرک باقی نہ بچے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونے لگے۔ یہ ہے مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کفار سے، مشرکین سے لڑو، ہے نا، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک باقی نہ بچے، شرک نہ رہ جائے، اور پوری کی پوری عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ دیکھا آپ نے کیا کہا؟ ان سے لڑو، کن سے؟ مشرکین سے۔ کوئی تفریق کیا؟ کوئی استثناء نہیں، سارے مشرکین سے لڑو۔ وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں، فرشتوں کی کریں، مورتیوں کی کریں، درخت کی کریں، ہے نا، یا کسی اور چیز کی کریں، کوئی فرق نہیں، سب سے کیا جائے گا؟ سب سے علی الاطلاق لڑائی لڑی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے صحابہ کو اس بات کا، اور اللہ کے نے اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ ہو گئی بات، عام بات، کہ تمام مشرکین سیم درجے میں ہیں۔ تمام مشرکین کیا ہیں؟ سیم درجے، سب سے لڑائی لڑی جائے گی، جنگ کیا جائے گا، اسلامی نظام ہوگا، اور ولی امر حاکم مسلمانوں کا اگر اس چیز کو مسئلہ سمجھے گا تو یہ چیز عمل میں آئے گی۔ انڈیویجول یہاں 2 وہاں 4، یہ فلاں وہ فلاں، اور جائیں دنگا کریں، فساد کریں، لڑائی لڑیں جہاد کے نام پر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب خود دنگا ہے، فساد ہے۔ اس لیے یہ جہاد کا مسئلہ ایسا نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق جہاد فرض کیے بیٹھا ہے اور جہاد کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے، نہیں فالو کرتے، اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ اس کے مقابلے میں تحزب، پارٹی بندی کر لیتا ہے۔ یہ دیکھو ہماری بات نہیں مانتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یعنی دشمنی کی، نفرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات نہ ماننا۔ حق اور نہ حق کا مسئلہ نہیں، اس کی بات نہیں مان رہے، اس لیے وہ ہم کو کیا سمجھتا ہے؟ ہم کو الگ تھلگ سمجھتا، دشمن سمجھتا۔ یہ ہے لوگوں کا رویہ، لوگوں کا وتیرہ۔ بہرحال سورج اور چاند کی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت، سجدہ مت کرو۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فرشتوں کے بارے میں؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی تمہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ ان کو کیا کرو؟ فرشتوں کو، اللہ کے نبیوں کو کیا کرو؟ رب بنا لو۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ نبیوں کی دلیل آپ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو معلوم ہے نا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ عبادت آج بھی لوگ ان کو ثالث و ثلاثہ، ٹرینٹی میں رکھا ہوا ہے، ان کو بھی معبود مانتے۔ ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی، ہے نا، معبود مانتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا رب بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اللہ میں نے نہیں کہا، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے کہا ہوتا
تو تجھے معلوم ہوتا, تیرے علم سے کوئی چیز تو باہر ہے نہیں, اللہ سب تو جانتا. بہرحال میں جب تک زندہ تھا, میں نے کبھی, جب تک میں زندہ تھا یعنی موجود تھا, اپنی قوم کے درمیان موجود تھا, تب تک تو میں نے نگرانی کی, دیکھا, اور ایسا نہ کچھ کہا نہ ایسا کچھ ہونے دیا کہ کوئی میری عبادت کرے, میری ماں کی عبادت, ایسا کچھ نہ کہا نہ کبھی ایسا ہونے دیا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم, لیکن جب تو نے مجھے وفات دے دی, وفات دے دی مطلب موت نہیں, یعنی زندگی جو جیتے جی, زندگی جیتے جی تجھے جو دنیا سے اٹھانا تھا اور جیتے جی دنیا میں جو رہنے کا پیریڈ تھا وہ تو نے پورا کر کے مجھے زندگی دے دی, یعنی زندہ اٹھا لیا. تو کنت انت الرقیب علیہم, اے اللہ تو ہی ان کا نگراں ہے, تو ہی ان کا دیکھنے والا, تو ہی جانتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں نے میرے بعد کیا کیا ہے. میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے کچھ. دیکھا آپ نے, تو نبیوں کی عبادت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ عزیر کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, یہودیوں نے, عیسائیوں نے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ سب کس کی عبادت ہو رہی ہے؟ نبیوں کی اور رسولوں کی. عزیر علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ نبی بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے بھی ہو سکتے ہیں. تو عزیر کو بھی عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ کا بیٹا بنا لیا. اب نبی ہیں تو بیٹا بنانا غلط, شرک, اور اگر ولی ہیں تو بھی بیٹا بنانا شرک ہے اور غلط. تو یہ دیکھا آپ نے, نبیوں کو رسولوں کو بھی عبادت کرتے تھے. اس کے علاوہ دیکھیے اور کیا مزید کہا آگے, نیک لوگوں کی عبادت, نیک لوگوں کی عبادت بھی ہوا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی 57 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ کن کو پکار رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ سے قریب ہونے کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں. اس کی تفسیر میں مطلب ایک سے زیادہ باتیں کہی گئی ہیں, اس میں سے ایک مشہور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ مشرکین کی کیا کرتے تھے, کچھ مسلمان مشرکین کی پوجا کرتے تھے, ٹھیک ہے, عبادت کرتے تھے. وہ مشرکین کیا ہو گئے؟ جن تھے. وہ کون تھے؟ وہ جن تھے. کچھ انسان مشرک جنوں کی پوجا کرتے تھے, ہے نا, کچھ انسان مشرک جنوں کی پوجا کرتے تھے. اب یہ مشرک جو جن تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی, مسلمان ہو گئے. اور یہ جو پہلے ان کی پوجا کرتے تھے وہ پوجا کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, پکارتے رہے, دعا کرتے رہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے تھے جو اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں کیوں پکارتے ہیں, ہم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں, اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور تم ہماری عبادت کر رہے ہو. تمہیں بھی وہی کام کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ سے قریب ہونے کے لیے تم بھی اللہ کی عبادت کرو, بندگی کرو, اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے عبادت اور اس کی بندگی کا کام کر رہے ہیں. تو دیکھا آپ نے یہ صالحین کی, کس کی؟ صالحین کی. ابھی جنات جب اسلام لے آئے تو صالحین میں آگے کہ نہیں آگے؟ پہلے تو مشرک تھے, تو بات ہی الگ تھی, لیکن اسلام لے آئے تو فاسلم الجنیون, جنی مسلمان ہو گئے, اسلام لے آئے. مسلمان اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ لوگ ان کی پوجا کرتے رہے. تو اس آیت کریمہ سے شیخ الاسلام نے دلیل پکڑی ہے, دلیل پیش کی ہے. یہ دیکھو ان کی بھی لوگ کیا کر رہے تھے؟ پوجا کر, صالحین کی پوجا. ایسے بھی حدیثوں میں ہمارے سامنے حدیث ہے نا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کانو, اہل کتاب یہود و نصارہ کیا کرتے تھے, کانو اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. جب کوئی نیک آدمی کی موت ہوتی تھی یہودیوں عیسائیوں کے ہاں, تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیا کرتے تھے. اتخذوا قبور انبیائہم و صالحیہم مساجدا. اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر, ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدہ گاہ بنا لیا. دیکھا آپ نے, تو ان کی بھی عبادت ہوا کرتی تھی. ایسے ہی اور بھی لوگوں کی عبادت ہوتی تھی, سورج چاند ستاروں کی بھی عبادت ہوتی تھی, جیسا کہ بات آ چکی ہے. یہاں آئی بات پتھروں کی اور درختوں کی عبادت, پتھروں کی اور درختوں کی عبادت. اللہ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری, ذرا بتاؤ لات کے بارے میں, منات کے بارے میں, اور تیسرا گیا گزرا عزا. لات کے بارے میں, عزا کے بارے میں بتاؤ, مجھے خبر دو, اور تیسرا گیا گزرا منات کے بارے میں بتاؤ. حقیر
मनात, इन 3 बुतों का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने लिया। अल्लाह ने फरमाया तुम लोग इनकी इबादत करते हो, जरा बताओ कि इनके पास क्या ताकत है, क्यों इबादत करते हो, ये इबादत के काबिल कैसे हो गए, ये इबादत के काबिल कैसे हो गए, तुमने कैसे इनकी इबादत और पूजा करना शुरू कर दिया। अब ये कौन लोग हैं जानते हैं? ये लात, मनात, उज्जा, 3 नाम आया ना, 3 नाम। इसकी वजाहत सरसरी तौर पर आपके सामने आ जाए। देखिए लात जो था ना, लात, इसको लात भी पढ़ा गया और अल्लात ता पर तशदीद के साथ भी पढ़ा गया। अगर लात पढ़ा जाएगा सिंपली जज्म के मतलब तशदीद के बगैर, तो उसका माना क्या होगा? असल में एक बुत था। क्या था? एक बुत था। एक बुत का नाम है, ताइफ में पाया जाता था और एक पत्थर की चट्टान की शक्ल में था जिस पर नक्शो निगार बने हुए थे, डेकोरेशन किया हुआ था। तो ये क्या था? ये पत्थर था, चट्टान। तो पत्थरों की पूजा करते थे कि नहीं करते थे? पत्थरों की पूजा करते थे। अच्छा, उसके बाद अगर इसको लात तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो उसका माना होगा सत्तू घोल करके हाजियों को पिलाने का काम करता था। यानी फिजिकली एक आदमी था। कौन था ये? इंसान था, नेक आदमी था, और हाजी जो हज करने के लिए आते थे उन हुज्जाज को सत्तू घोल करके पिलाता था, उनका पेट भरता था नेकी के लिए, सवाब के लिए। तो अगर पहली वाली बात मानते हैं तो पत्थर की मूर्ति थी वो, दूसरी बात मानते हैं तो इंसान था लेकिन नेक आदमी था। इसका मतलब यह हुआ कि पत्थर की पूजा भी लोग करते थे, नेक इंसान की पूजा भी लोग करते थे। मनात की बात आई, उज्जा की बात आई। उज्जा, उज्जा क्या है? ये उज्जा दरअसल कुछ दरख्तों का मजमुआ था, दरख्तों का मजमुआ। कुछ दरख्त थे, कई एक दरख्त वहां इकट्ठा उगे हुए थे। ये कहां पर? ये वादी नखला में। वादी नखला मक्का और मदीना के, मक्का और ताइफ के दरमियान की एक बस्ती है वादी नखला, वहां पर ये दरख्त मौजूद थे। अब जो लोग मनात की पूजा करते थे तो दरख्तों की पूजा करते थे कि नहीं करते थे? दरख्त तो था मनात, और क्या था? ये मनात नहीं, उज्जा। उज्जा की पूजा करते थे। तो उज्जा क्या था? दरअसल कुछ दरख्तों का मजमुआ था और बड़ा खतरनाक मसला था। और वहां शैतान रहता था अंदर, और जब कोई जाता था उनको पुकारता था तो शैतान आवाज का जवाब देता था। पुकारने वाले का जवाब, बोलो क्या चाहिए। अब लोग समझते थे कि यही बस बोल रहा है, यही दरख्त क्या है? बोल रहा है। हालांकि वो क्या था? धोखा था। शैतान कुफ्र में, शिर्क में मुब्तला करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वो चल रहा था। बहरहाल तो ताइफ और मक्का के बीच में ये कुछ दरख्तों का मजमुआ था और दरख्तों पर पर्दे वर्दे लटके हुए थे। कुछ वहां इमारत बनी हुई थी, ढांचा बना हुआ था, और वहां पर कुछ मुजावर बैठे रहते थे। सदना मुजावर बैठे रहते थे, और वहां शयातीन थे, वो शयातीन बात करते थे, और जाहिल लोग समझते थे कि ये कोई दरख्त बोल रहा है। हालांकि दरख्त नहीं बोलता था, वो शैतान बोलता था। बहरहाल आएगी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जब मक्का फतेह हो गया तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेज करके इन सब का खात्मा करवा दिया, दरख्तों को कटवा दिया, और उस जिन्नी को भी वहां से भगाया गया, और जो पत्थर की चट्टान थी वहां पर इबादत होती थी उसको तहस नहस किया गया। और आखिरी वाला जो बाकी बचता है वो क्या है? मनात। मनात क्या है? मनात जो है ये दरअसल एक बुत का नाम है, मूर्ति एक बुत का नाम है जो मक्का के करीब पाया जाता था, जिसको कुदैत का इलाका कहलाता है। आज भी कुदैत का इलाका मौजूद है मक्का मदीना के बीच में। जब आप जाते हैं तो आपको कुदैत का बोर्ड भी दिखाई देता है, तो वहां पर यह पाया जाता था। तो ये 3 बुत थे, अरब के 3 बुत थे, और ये जो था ना आखिर वाला मनात, ये सबसे बड़ा बुत अरबों का माना जाता था। अब मैंने आपसे अर्ज किया कि शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह ने वज़ाहत की है कि ये सब के सब इनकी पूजा होती थी। जिसमें देखा आपने शजर भी है, इस पत्थर भी है, इसके अंदर मूर्तियां भी हैं, इन सब की इबादत हुआ करती थी। अच्छा, ये जो बात आई बीच में, इसको मुकम्मल कर लें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को गलबा अता फरमाया और मक्का फतेह हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुगीरा बिन शोबा को और अबू सुफियान बिन हर्ब को भेजा कि लात के पास जाएं, जो ताइफ में था, जा करके उसको ढा दें। लात की जो पत्थर की जो मूर्ति बनी, पत्थर की चट्टान थी ना, उसे क्या करें? उसे तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर दें, ढा दें। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, गए और यही करके आए। उसके बाद ये जो था उज्जा, दरख्तों का मजमुआ, अल्लाह के नबी ने उसके लिए खालिद बिन वलीद को भेजा और कहा जा करके वहां जो इमारत वगैरह बनी है, पर्दा वर्दा लटका हुआ, उसको सब क्या करो? उसको तब तोड़ फोड़ दो, उसको ढा दो, और जो दरख्त है वहां उन दरख्तों को क्या करो? उन दरख्तों को काट दो, और जो जिन्नी है उसे कत्ल कर दो।
जो जिन्नी है उसे कत्ल कर दो। जिन्नियां थी, लेडीज जिसको कहते हैं लेडी, वो थी वहां, वो बात करती थी बहरहाल, और लोगों को गुमराह करती थी। तो इस तरह से अल्लाह के नबी ने पूरा शिर्क का, बुत परस्ती का, है ना, एकदम खात्मा किया, जड़ से खात्मा जिसको कहते हैं, कॉम्बिंग की अल्लाह के नबी, खत्म कर दिया। और तीसरा क्या था? मनात, जो मूर्ति की शक्ल में, देवी देवता की शक्ल में मौजूद था। अल्लाह के नबी ने उसके लिए अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था कि जाओ मनात का काम तमाम करके आ जाओ, उसको ढा करके तोड़ फोड़ करके आ जाओ। और आपको याद होगा अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो बात पेश की थी जब आपने अपने दौरे खिलाफत में अबुल हय्याज असदी ताबिई को इसी काम के लिए भेजा था। उन्होंने क्या कहा? क्या मैं तुम्हें उस काम के लिए ना भेजूं जिस काम के लिए अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा था? और यही काम फिर अली बिन अबी तालिब ने अपने दौरे खिलाफत में अबुल हय्याज को भेज करके करवाया। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि ये है देवी देवता। तो किस किस की इबादत होती थी? सबकी ना, उसके अंदर फरिश्ते, नबी, रसूल, सालिहीन, देवी देवता, शजर, हजर, सबकी पूजा होती थी, सबकी। और इन सब को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुशरिक करार दिया। कोई फर्क नहीं किया कि ये है ना, ये जिब्रील वाले हैं, ये नबी वाले हैं, ये पत्थर वाले हैं, ये मूर्ति वाले हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं किया। सबको क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मुशरिक। और सबको एक साथ में, एक ही हुक्म में, एक ही दर्जे में रखा गया। बहरहाल यहां और कुछ दलीलें मौजूद है मजीद दरख्त के हवाले से। वो अबू वाकिद लैसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जो वो दरख्त की शाख पर लोग हथियार वगैरह लटकाया करते थे, तबर्रुक लेते थे, है ना, जातो अनवात, लटकाऊ पेड़, लटकाऊ दरख्त, उससे बरकत का अकीदा रखते थे, समझ लें। तो ये तरीका भी, यानी दरख्तों को भी बरकत का जरिया समझने वाला शिर्क और बदअकीदगी क्या थी? उस जमाने में पाई जाती थी। हर तरह के लोग थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनमें कोई फर्क नहीं किया। इन सबको एक दर्जे में रखा, सबको मुशरिक करार दिया और सबके साथ जंग हुई, कोई तफरीक नहीं की गई। तो यह है असल में इस तीसरे मसले का खुलासा, तीसरे कायदे का खुलासा। चौथा कायदा क्या है? चौथा और आखिरी कायदा, यह लंबा नहीं है, मुख्तसर ही है, मैं इसकी वजाहत सरसरी तौर पर कर देता हूं आपके साथ। चौथा कायदा यह है कि मुशरिकीन जो थे उस जमाने में और मुशरिकीन जो हैं आज के जमाने में, अब आज तो हम बैठे हैं, आज के जमाने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर शेखुल इस्लाम की बात अगर हम पढ़ें तो आज से तकरीबन 250 साल पहले के मुशरिकीन, अरब के मुशरिकीन जो थे ना, क्योंकि 250 साल तकरीबन गुजर गए उनकी वफात को, और ज़ाहिर की वफात से पहले की बातें हैं ये सब, जब किताब लिखी उन्होंने, तो कमोबेश 250 साल या उससे कुछ ज्यादा ही उन्होंने अपने जमाने के बारे में क्या कहा? हमारे जमाने के मुशरिकीन, अरब के, कुरैश के, अल्लाह के नबी के जमाने के मुशरिकीन के मुकाबले में अगलब, कई गुना ज्यादा गंदे और घिनौने हैं। अब ये जो उस जमाने के मुशरिकीन के मुकाबले में बाद के, आजकल के, या 250 साल पहले, या आज तो और ज्यादा बुरा हाल है, ये मुशरिकीन ज्यादा गंदे थे। ये दो तरह से यहां कवाइद अरबा में एक बात बयान की गई है, दूसरी बात शेखुल इस्लाम ने अपनी दूसरी किताब में बयान की है। यहां क्या बयान किया है? यहां पर कहते हैं कि पिछले जमाने के मुशरिकीन के मुकाबले में आजकल के जमाने के मुशरिकीन ज्यादा गंदे हैं, घिनौने हैं, गए गुजरे हैं। उसकी वजह कहते हैं यह है मसला कि उस जमाने के मुशरिकीन जो थे वो क्या करते थे? अल्लाह अकबर, वो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत और परस्तिश कब करते थे? कब? आसानी में कि परेशानी में? आसानियों में इबादत करते थे, परेशानियों में कि आसानियों में? बताइए। एक है रखा, सिंपल, अच्छा माहौल, सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत, माल की फरावानी, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। और एक है मुसीबत आई, आफत आई है ना, वबा आई है, हादसा हो गया, आग लग गई, खेती जल गई, कारोबार चला गया। आसानी परेशानी दो तरह की हालत होती। तो क्या कहते हैं कि उस जमाने के मुशरिकीन का मामला यह था कि वो जब मुश्किल में होते थे तब देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, ठीक है।
लेकिन आजकल के मुशरिकीन आसानी में भी और परेशानी में भी, दोनों हालत में अल्लाह को छोड़ करके देवी देवताओं को पुकारते है कि नहीं? तो मुशरिकीन अरब में और मुशरिकी ज़मानीना, हमारे दौर के मुशरिकीन, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक बात तो यहां बयान फरमाई है कि भाई अब पहले के जमाने के मुशरिकीन से आजकल के जमाने के मुशरिकीन गए गुजरे हैं कि नहीं? कितने गए गुजरे हैं? मुश्किल में अगर तुमने पुकारा तो चलो ठीक, कम से कम मुश्किल की बात आती है, लेकिन आजकल के मुशरिकीन तो आसानी है कि परेशानी है, चलो बाबा की मजार पर, हर सूरत में अल्लाह को नहीं, किसको पुकारो? औलिया, सालिहीन, फरिश्ते, है ना, देवी देवता, ये। और दूसरा क्या है? दूसरा नुक्ता क्या है? दूसरा नुक्ता है कि उस जमाने के मुशरिकीन जिनको पुकारते थे, अरे वो ऊंचे लोग थे, फरिश्तों को, कितना ऊंचा मकाम है, अल्लाह की मखलूक, नूर की मखलूक, अल्लाह की मखलूक, नूर की मखलूक, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, अंबिया, रसूल, ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या लिखा है शेख सालेह फौजान ने? या तो वो उनके नबियों में से हैं या फिर उनके नेक बंदों में से हैं। यहूदियों के, या तो उलमा, या तो यहूदियों के नबियों रसूलों में से है, और या फिर यहूदियों के सालिहीन में से, नेक बंदों में से, दोनों हो सकते हैं। उज़ैर अल्लाह के नबी भी हो सकते हैं और नेक बंदे भी हो सकते हैं, उनको पुकारते थे, है कि नहीं? आजकल के मुशरिकीन जानवरों को, कुत्ते को, बिल्ली को, मक्खी को, मच्छर को, है कि नहीं? लोग शर्मगाहों की पूजा कर रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। कितनी जगहों पर तो कुछ नहीं है, हल्दी पड़ी हुई है और नारियल पूजा हो रही है। धीरे 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 छोटा मकान, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आज पूरा मजार बना हुआ है, अंदर कोई दफन भी नहीं, पूजा हो रही कि नहीं हो रही? ये मसला कितना डिफरेंस का है। तो एक बात, ये चौथा जो कायदा है, ये चौथा कायदा भी बड़ा अहम है। अब दोनों बातें समझना है। एक बात तो ये कि चाहे अदना को पूजा जाए या आला को पूजा जाए, अदना को या आला को, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिर्क बहरहाल शिर्क है। दूसरी चीज, चाहे मुसीबत में पुकारा जाए या आसानी में पुकारा जाए, आसानी में, परेशानी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के सिवा को पुकारा जाना दरअसल शिर्क है, और ऐसा करने वाले मुशरिक हैं, अंजाम वही होगा दोनों का। तो अदना हो, आला हो, मुश्किल हो, आसानी हो, किसी सूरत में पुकारा जाए, किसी को भी पुकारा जाए, ये शिर्क। और अब गिने, चारों बातों को गिने। नंबर एक, पहला कायदा क्या था? पहला कायदा बोलिए, तौहीद रुबूबियत। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में रुबूबियत का अकीदा रखना इंसान को मुसलमान नहीं बनाता। आदमी इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं होता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सबको मुशरिक करार दिया, काफिर करार दिया, सबसे लड़ाइयां हुई। नंबर एक। दूसरा कायदा कुर्बत का, शफात का, इस हवाले से कोई आदमी किसी को भी, अदना को, आला को, इबादत का कोई हक देता है तो वो मुशरिक है। ये कहने से नहीं बचेगा वो आदमी कि मैं तो अल्लाह नहीं मान रहा हूं, उसको रब नहीं बोलता, मैं तो करीब होने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मैं तो सिफारिशी बन जाए मेरे लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा बोल करके कोई बाकी नहीं बचेगा, वो मुशरिक माना जाए। नंबर तीन, तीसरा क्या था? जितने टाइप के भी शिर्क दुनिया में करें, यानी शुरका, क्या कहने आप? शुरका, जिनको अल्लाह का शरीक बनाया जा रहा हो, वो सब एक दर्जे में है। चाहे जानदारों को शरीक किया जाए, बेजानों को शरीक किया जाए, इंसानों को शरीक किया जाए, फरिश्तों को शरीक किया जाए, जिन्नों शयातीन को शरीक किया जाए, और जमादात को शरीक किया जाए, नबातात को, यानी दरख्तों को, पौधों को शरीक किया जाए, पत्थर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब के सब शुरका है अल्लाह के, तफरीक नहीं की जाएगी। ये इनको पूजने वाले तो ऊंचे मकाम के हैं, ऐसे कैसे फरिश्तों को और मक्खी मच्छर को बराबर कर देंगे? ऐसे कैसे नबी को, ईसा अलैहिस्सलाम के पूजने वालों को और मूर्ति पूजने वालों को बराबर कर देंगे? ऐसी कोई बात नहीं कह सकता, सब के सब मुशरिक हैं। और ये मामला आज भी मौजूद है। आज बताओ मैं आपको,
ये जो कब्र परस्तों का जो तबका है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, तौफीक दे ईमान की, तौहीद खालिस की, और ये ईमान से तौहीद से बहरावर हो जाएं और शिर्क की दलदल से अल्लाह इनको बाहर निकाल दे। आमीन रब्बल आलमीन। आज अगर आप शिर्क वाली ये आयतें उन पर पढ़ते हैं, कब्रों की पूजा कर रहे हैं, आप ये आयतें पढ़ते हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं। कहते हैं आप लोग उस जमाने के मुशरिकीन मक्का की आयतें हमारे ऊपर क्यों पढ़ते हैं? क्या कहते हैं? मुशरिकीन मक्का के बारे में जो आयतें उतरी हैं कुरान में, उन आयतों को आप हमारे लिए क्यों पढ़ते हैं? मुशरिकीन मक्का थे, वो देवी देवता लात मनात उज़्ज़ा को पूजने वाले थे, और हम कब्रों को पूजते हैं। कब्र में कौन है? ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बंदा गेसु दराज, रिफाई, बदवी, अली हजवेरी, मिसाल के तौर पर ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम अल्लाह के नेक बंदों को पुकारते हैं, और आप लोग हमारे बारे में वही आयतें पढ़ते हैं जो आयतें लात मनात उज़्ज़ा के बारे में उतरी हैं। तो उनको यह समझाना है, ऐसा नहीं है कि वो आयतें सिर्फ लात मनात उज़्ज़ा के पुजारियों के लिए उतरी हैं, बल्कि उस जमाने में लात मनात उज़्ज़ा की भी पूजने वाले थे। और आप जैसे औलिया और सालिहीन की बात करते हैं, ऐसे औलिया और सालिहीन को भी पूजने वाले थे, नबियों के भी पूजने वाले थे, फरिश्तों की भी पूजने वाले थे। सबको अल्लाह के कलाम में, नबी की सुन्नत में मुशरिक कहा गया, कोई डिफरेंस नहीं किया। तो ये है कवायद, इन चार कवायद के जरिए से हमें सच्ची तौहीद समझने में मदद मिलती है, शिर्क की हकीकत समझ में आती है। जितनी कंफ्यूजन, जितना डाउट, बड़े बड़े जो डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या कर दिया है? अपने इन चार कवायद के अंदर खत्म कर दिया है। और इसके साथ में, इसी के साथ में हकीकत यह है कि इसी के साथ में हमें और आपको कश्फ शुबहात फी तौहीद भी पढ़ना चाहिए। कश्फ शुबहात फी तौहीद, तौहीद के बारे में डाउट्स, तौहीद के बारे में डाउट्स का इजाला, बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं, लेकिन कश्फ शुबहात बहरहाल वक्त तलब है, उसके लिए मतलब ऐसे 2-2, 3-3 घंटे की 2-3 मजलिसें होनी चाहिए, तब जाकर के उसकी बात समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे शुबहात हैं, बहुत सारी शुबहात हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। और यकीन मानिए शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह का जज्बे दावत उम्मत के लिए, कौम के लिए, अल्लाह की तौहीद का पैगाम कैसे उन तक पहुंचे, इस कदर दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत मेरे भाइयों तारीख़ इस्लाम में आपको बाद के दौर में शायद न मिले या कम से कम मिले। हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मोहसिन अल बद्र हाफिज़हुल्लाह बहुत तफसील से उनके बारे में गुफ्तगू करते थे। वो कहते थे कि इनका जज्बा देखो, मैं इस पर बात कर रहा हूं कि उन्होंने क़वाइद अरबा लिखी ताकि लोग उम्मत तौहीद और शिर्क की हकीकत को जाने। उसूल सलासा लिखी है कि नहीं, उसूल सित्ता लिखी, उसके अलावा किताब तौहीद लिखी, फिर कश्फ शुबहात भी तौहीद लिखी। क्यों? ताकि खरी तौहीद उम्मत के सामने आ जाए। मोटी मोटी जिल्दें नहीं लिखी, 2 वरक 3 वरक, 1 पेज आधे पेज में किताब लिखी, लेकिन आज इस कदर इखलास, इस कदर लिल्लाहियत उनके यहां कि आज उनकी उन किताबों को, उन 1-2 वरक 4 वरक की किताबों को ढूंढ ढूंढ करके उलमा शरह कर रहे हैं और हम सब बैठ करके पढ़ रहे हैं ताकि अपने अकीदों की इस्लाह कर ले जाए। तो हमारे उस्ताद डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बद्र कहते थे इस कदर मुखलिस और इस कदर नेक जज्बा रखने वाली शख्सियत कि अगर उन्हें किसी दूर दराज देहात के इलाके में जाते जहां शिर्क बुत परस्ती चल रही थी, और वहां जाकर के जब उनका तजदीदी काम चल रहा था, जब पहुंचते थे तो देखते थे कि वो किस लेवल के लोग हैं। उनको अरबी फसीह आती भी कि नहीं आती है। ये जो फसीह अरबी होती है ना, यानी ग्रामर की कवायद की जो अरबी साफ सुथरी लिटरेचर वाली अरबी, उनको आती है कि नहीं आती है? अगर उनको आती तो उस जमान में बात करते, और अगर वो देहाती है, गांव के माहौल में रहने वाले, उनको फसीह अरबी नहीं आती, उनकी देहाती अरबी बोलनी पड़ेगी, तो उनके मिंबर पर खड़े होकर के देहाती जबान में बात करते थे और कहते थे क्या? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही। अल्लाह ने फरमाया कि जिस रसूल को भी अल्लाह ने भेजा है उसको उसकी कौम की जबान में भेजा है। जबान में भेजा, अरबी जबान तो है वो, लेकिन वो जबान फसीह जबान नहीं है, देहाती जबान है, गाँवटी जबान है, गांव की जबान, देहातों की जबान है। अब वो फसीह जबान नहीं समझ सकते, देहात की जबान समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए फसीह जबान के बजाय कौन सी जबान में बात करना चाहिए?
उनकी अपनी देहात की ज़बान में बात करना चाहिए। तो मसला सिर्फ इसका नहीं कि उर्दू, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, ये मामला नहीं है। ये तो ज़बान है ही, लबो लहजा, अंदाज। आपका एक कोलकाता का, मगरबी बंगाल के इलाका, बाज़ इलाके ऐसे भी होंगे जहां के हमारे भाई बंगला ज़बान बोलते हैं, बंगला ज़बान समझते हैं, किताबें भी बंगला में पढ़ते हैं, उर्दू नहीं समझते, मिसाल के तौर पर, एक कम समझते हैं, और बंगला ज़बान में बात होनी चाहिए। और बाज़ इलाके ऐसे होंगे जहां मिसाल के तौर पर बंगला ज़बान वो किताब की ज़बान नहीं बोलते हैं, लिखते हैं। कौन सी ज़बान जानते हैं वो? आपस में बोली जाने वाली भाषा। तो उनको दावत किस 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 ज़बान में देनी चाहिए? उनके अपने लबो लहजे में देना चाहिए, ताकि वो समझें। ज़बान तो कोई भी आदमी बोले, बोल सके ना बोल सके, जो भी ज़बान बोल सके उसमें जिंदगी गुजार ले, उस पर कोई जन्नत जहन्नम का मसला नहीं है। लेकिन तौहीद के बगैर जाएगा तो, शिर्क के साथ जाएगा तो, ईमान का, अगर ईमान की सलामती अगर नहीं है, फिर इंसान के लिए बेइंतहा खतरनाक, इससे बड़ा खतरनाक कोई मसला नहीं है। तो खुलासे कलाम यह है कि हम इस मसले को समझें, और ये लोग जो है, ये जो 4 कवायद जो हमने अपने पढ़े, इन चारों कवायद को अपने ज़हन दिमाग में बिठाएं, अपने ज़हन दिमाग में बिठाएं। हमेशा याद रखें कि किस किस तरह से तौहीद को खालिस किया जा सकता है। शिर्क के सिलसिले में हम दूसरों को, अपने लिए भी, ये भी देखिए बहुत बड़ा मसला। ऐसा नहीं कि हम अहले हदीस हैं तो हम मतलब गुनाहों से एकदम मुबर्रा हैं, कभी गलती नहीं हो सकती है। यानी शिर्क का डर तो हमें हमेशा होना चाहिए, शिर्क का डर, खौफ हमें हमेशा होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? वजुनुबनी व बनी अन्ना अबुदल असनाम। अल्लाह से दुआ करते हुए क्या कहा? मुझे और मेरे बेटों को, यानी मेरी औलाद को, बुतों की पूजा करने से दूर कर दे। अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाओ, बचाइयो, यानी अल्लाह मुझे दूर कर दे। उलमा तफसीर में क्या कहते हैं? वजुनुबनी कहते हैं इजअलना अला जंब वहुम अला जंब, वजुनुबनी, मुझे दूर कर दे। पर मतलब क्या कहते हैं उसको? इज्तिनाब, जिसको बोलते हैं ना, इज्तिनाब, दूर हटना। कहते हैं मुझे जम में कर दे, उनको जम में कर दे। यानी क्या मतलब? अल्लाह मुझे और मेरे बाल बच्चों को एक किनारे कर दे, और बुतों की परस्तिश को एक किनारे, दूसरी किनारे कर दे, यानी एकदम दूरी कर दे कि मैं और मेरे बच्चे कभी शिर्क के पास, बुत परस्ती के करीब न जाए। इससे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिर्क का, बुत परस्ती का डर लगता है, तो फिर दुनिया में किसको बुत परस्ती से, शिर्क से नहीं डरना चाहिए? हमको तो कितना डरना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तौहीद के इमाम हैं, जिन्होंने तौहीद को ऐसे समझा कि उसके लिए जान की बाजी लगा दी, घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, है कि नहीं, कुंबे कबीले को छोड़ा, वक्त की हुकूमत से टक्कर लिया, तौहीद में किसी तरह का समझौता और शिर्क की कोई गुंजाइश मानने के लिए तैयार नहीं हुए, वो इब्राहीम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे और मेरे बाल बच्चों को बुत परस्ती से दूर रखना। अगर इब्राहीम को डर है शिर्क का, बुत परस्ती का खौफ है, तो हमको कितना डरना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलम व अस्तगफिरुका लिमा ला आलम। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं तेरे साथ किसी तरह का शिर्क करूं जानते हुए। क्या मतलब? जानते हुए शिर्क करूं। अल्लाह मैं क्या है, मैं तेरी पनाह चाहता हूं इससे, अल्लाह बचाना कि मैं जानबूझ के कभी शिर्क करूं। और अगर कभी अनजाने में हो जाए, ना पता चले, तो अल्लाह तबारक व तआला मैं तुझसे बख्शिश का, मगफिरत का सवाल करता हूं। ठीक है, ये है मुख्तसर तौर पर ये चारों कवायद की, चारों कवायद का सरसरी तौर पर खुलासा। शेखुल इस्लाम ने, शेख साले फौजान ने जो शरह लिखी है, वो तफसीली शरह है, लंबी शरह है। हम लोगों ने इसे बम्बई में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 से 11 मजलिसों में पढ़ा है, यानी 8 से 9 घंटे में पढ़ा है। तो बहरहाल की जितना तफसील करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतनी सी बात मैं समझता हूँ कि इन उसूलों को समझने के लिए काफ़ी है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला। जी बोलिए, अजान कब है? अच्छा, हाँ,
ہاں صحیح کہا آپ نے، نہیں چوک ہوئی مجھ سے بولنے میں، بالکل صحیح بات ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آسانیوں میں وہ شرک کرتے تھے اور مشقتوں میں، مصیبتوں میں اخلاص کا سوال کرتے تھے۔ صحیح ہے، واقعہ شیخ ان کا اکریمہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور کشتی میں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، مشرکین کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کشتی ڈوبنے لگی بھنور میں۔ قرآن کریم کی آیت میں منظر بھی کھینچا گیا اس کا، ہے نا، کہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب انہیں سمندر کی موجیں گھیرتی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ تو کشتی میں مشرکین موجود تھے۔ جب کشتی بھنور میں پھنسی اور جان جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہونے لگی تو سب لوگوں نے آواز لگائی، لوگوں خالص دعا کرو اللہ سے، اخلص الدعا، خالص دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اکریمہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا، اچھا تو آسانیوں میں دیوی دیوتا بچاتے ہیں اور مشکلوں میں اللہ بچاتا؟ آسانیوں میں کون بچاتا ہے؟ اللہ، اور مشکلوں میں، آسانیوں میں کون؟ دیوی دیوتا، اور مشکلوں میں اللہ۔ تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا فرق کیوں ہے؟ وہی اللہ ہر حال میں ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہاں سے ان کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ فکرہ آیا اور یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ ان کے دل کے اندر بیٹھا اور شرک سے انہوں نے توبہ کیا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چاروں قواعد کو سمجھنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اور اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو نظریاتی ہو، پریکٹیکل مسئلے ہیں، یہ سارے مسائل ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور تقریباً چاروں قواعد کے ضمن میں سرسری طور پر ہی صحیح کوشش کی گئی کہ کچھ اشارے بھی آئے کرنٹ حالات کے، ہے نا، کچھ رائٹرز کے حوالے آئے، کچھ بولنے والوں کے حوالے آئے، کچھ لوگ جو عام طور پر کرتے ہیں سماج میں، سوسائٹی میں، اس کا ذکر آیا۔ اس طرح سے یہ سارے کے سارے موضوعات ہمارے اپنے درمیان کے موضوعات ہیں، نظریاتی تھیوری کے موضوع نہیں ہے، پریکٹیکل موضوع ہے، عملی موضوع ہے، تطبیقی موضوع ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بہرحال بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بھی بے خوف نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمیں وفات سے پہلے کبھی ہمارے دلوں کو موڑ نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمائے، اسی توحید پر، سنت پر ہی ہماری موت ہو، شرک سے بیزاری پر ہماری موت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔